when we start indirect taxes, we have to understand why it is called as an indirect tax. So indirect tax is a tax in which the burden, I repeat, the burden comes on the final consumer. The burden comes on the final consumer, but the taxability is never on the final consumer. Let us try to understand these words with a very simple example. I hope you understand that in Income Tax Act, what will be taxed? Obviously, income will be taxed. What will be taxed in income tax? Income will be taxed. Now, this income, say, is earned by the person who we call it as assessee. I repeat, in income tax we use the word assessee. ASSEEE. तो असेसी एक इनकम अर्न करता है. तो गवर्नमेंट क्या बोलता है, बॉस देख तूने इनकम कमाया, तू मानता है ये बात को? तो ये आदमी बोलता है यस सर, आई अर्न द इनकम. सो पॉइंट नंबर 1, government will ask you, did you earn the income? He says yes sir, I earned. Government will ask him, did you earn the income in the current financial year? This person says yes sir, I earned the income in the current financial year. Okay, so government बोलेगा boss, the burden to pay the tax is on you, and therefore the payment is also done from his own bank account. So the person who earns the income in a specific financial year also takes the burden of discharging his responsibility of paying the tax to the government. Now that is Income Tax Act. Are we learning Income Tax Act today? Are we learning Income Tax Act today? No, we aren't. We are learning an indirect act. So what happens in indirect taxes? What happens in indirect taxes? Indirect taxes में, let's see the chain. Here is the government. गवर्नमेंट ने स्टडी सर्कल को बोला कि स्टडी सर्कल, आर यू प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विस? गवर्नमेंट ने स्टडी सर्कल को पूछा, आर यू प्रोवाइडिंग कोचिंग सर्विस? तो स्टडी सर्कल क्या बोलेगा, यस या नो? ऑब्वियसली स्टडी सर्कल बोलेगा यस, वी आर प्रोवाइडिंग अ कोचिंग सर्विस. तो गवर्नमेंट स्टडी सर्कल को बोलता है कि सिंस यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विस ऑफ कोचिंग, यू बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर. आई से यस, वी अग्री, वी डोंट डिनाई दैट वी बिकम अ सर्विस प्रोवाइडर. तो गवर्नमेंट ने बोला कि भाई हमको क्या मिलेगा? तो स्टडी सर्कल ने बोला नो इश्यूज, वी विल पे यू द टैक्स. तो गवर्नमेंट ने बोला बॉस, द बर्डन दैट इज द टैक्सेबल एंटिटी स्टडी सर्कल. द बर्डन you don't have to take. You are just a taxable entity. But the moment a taxable entity provides a coaching service to a student, then student will pay you a fee. हमने बोला yes. That student will obviously pay the fee to study circle to learn. No doubt about it. But out of that fee, you have to charge goods and service tax, GST. So supposedly if a child pays say 20,000
that 20,000 does not mean only fee. Does not mean only fee. What is that including of? ये 20,000 अगर मैंने फी लिया है तो उस 20,000 में कौन सा ऑब्लिगेशन स्टडी सर्कल को डिस्चार्ज करना पड़ेगा? करेक्ट. That is the obligation what study circle has to discharge. But at the end of the day, student को burden लेना भी पड़ा और पता भी नहीं चला. So who took the burden? Burden means किसके जेब से पैसा जा रहा है फाइनली? करेक्ट, स्टूडेंट के जेब से. पर गवर्नमेंट को स्टूडेंट के थ्रू मिल रहा है या कोचिंग क्लास स्टडी सर्कल के थ्रू मिल रहा है? So obviously this falls under the category of indirect taxes. This falls under the category of indirect taxes in which the burden does not come directly on the person. I hope everybody understood the difference between direct tax and indirect tax. Did you understand, guys? Yes, sir. Yes, sir. Everybody? Yes, sir. Great, Yes, sir. great, Viraj. Amit? Yes. Okay. What about you, Shruti? Did you understand the difference between direct tax and indirect taxes? Yes, sir. Okay. So we first understood the concept of direct and indirect taxes. And I hope everybody is very, very clear with that. And if you're clear with that, I would like to take this forward. So now, the point number 1 what we study today was direct tax versus indirect taxes and what is the difference. That is understood. Now because we are doing indirect tax specifically for 50 marks, we have to understand the grassroots of indirect taxes. The grassroots level. Now let us try to understand one simple thing. ये indirect tax में आज जैसे कि आप जानते हैं कि GST is nothing but the present and not only the present but the future in which you are gonna survive. And I guess you are a lucky set of people जिसने GST को आते हुए देखा. क्या आपने देखा GST को आते हुए? Did you see GST? कब पास हुआ? आपके सामने ही हुआ यार. आप पैदा हो चुके थे. पैदा क्या तो बड़े भी हो गए थे. And I'm sure all of you were in school. Do you know what is the day when the GST came in India? Sorry, 2016. No, 2016 तो demonetization हो गया था. Nishi, 8th November 2016 is the day of demonetization. I repeat, which day? वापस बोलो कौन सा डे बोला मैंने? 8 November 2016. Okay, 8th November 2016 is the day of demonetization. तो obviously GST तो बाद में आया. पहले तो demonetization हुआ. Sir, Yes? 1st July 17. Correct. So GST came into India on 1st July 2017 is also celebrated as the GST day. It is also celebrated as GST day. 1st July 2017 is called as the GST day. You know what was the slogan or the theme of this GST? Can anybody say the slogan or the theme of the GST? Can anybody tell me that? A slogan or the theme of GST? बोल सकते हो कोई? Yes, Amit?
One nation, one tax, one market. लवली, प्राउड ऑफ यू, शाबाश. गूगल किया. क्या किया? अभी गूगल किया. अरे माँ कसम, दिल तोड़ दिया तूने गूगल बोल के. ओके, मेरे को लगा वाओ आज क्या बात है, बट इट्स ओके. लाइफ में गूगल एग्जाम में हेल्प नहीं करेगा बॉस, न क्लाइंट के सामने हेल्प करेगा. इट वॉज वन नेशन वन टैक्स. इट वॉज वन नेशन वन टैक्स. मतलब एक देश तो एक ही टैक्स लगना चाहिए. ऐसा क्यों बोला, ये स्लोगन ऐसा क्यों था? तो आई विल हैव टू टेक यू टू द प्री जीएसटी एरा. डिड यू अंडरस्टैंड? प्री जीएसटी एरा. जैसे एग्जाम्पल हम बोलते हैं ना, प्री ब्रिटिशर्स, प्री मुगल्स, प्री इंडिपेंडेंस. अभी एग्जीक्यूटिव में आने के पहले तो आपकी लाइफ कितनी अच्छी थी, कितना रॉयल लाइफ जीते थे तुम. एग्जीक्यूटिव में आने के बाद तुम्हारी लाइफ झंडू बाम हो गई. सो रिमेंबर वन थिंग, दैट इज योर प्री एग्जीक्यूटिव एंड पोस्ट एग्जीक्यूटिव. याद रहेगा. आपकी जीवन की बैंड कब से बजती है मालूम है? जब से हम एग्जीक्यूटिव में आते हैं, तब से लेकर अभी एंड तक, जब तक आप इस धरती पे जिंदा हो, आपके सर पे बोझ होने ही वाला है, या तो पढ़ाई का या क्लाइंट का. इसके पहले का जो आपका लाइफ था वो आपने एक्चुअल मजे किए. जिसने नहीं किया उसने मौका गवा दिया. और अब जो करेगा उसको धोखा मिलेगा. सो गाइस, we will have to go through the concept of pre-GST. So यहाँ देखो pre-GST क्या था अपने इंडिया में. I am giving you a rough background of pre-GST. Now why, what was pre-GST? GST नहीं था तो कोई तो टैक्स होगा. ऐसा तो नहीं था ना कि गवर्नमेंट को कोई टैक्स मिलता ही नहीं था. मिलता होगा कोई ना कोई नाम से. तो हमारे यहाँ पे टैक्सेस बहुत सारे नाम से थे, बहुत सारे नाम से, और अलग अलग लेवल पे लगते थे. एग्जाम्पल, अगर आपने प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया तो आपको एक्साइज ड्यूटी लगता था. वापस बोलो, कौन सा ड्यूटी लगता था? इफ यू मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट, you would have to pay excise duty. Okay. अब आपने सेल किया तो गवर्नमेंट पूछती थी तुमने किधर सेल किया भाई, लोकल की इंट्रा स्टेट. व्हाट इज इंट्रा? इंट्रा मतलब क्या होता है? विद इन की आउटसाइड? Within. तो इट कैन बी लोकल, मतलब बाजू में गली गली में माल बेचा, या आपने इंट्रा स्टेट बेचा, या आपने इंटर स्टेट बेचा. इन सबके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, और अगर कभी कभी दोनों भी लगता था. दैट इज द वैट एंड द CST. माल बेचते तो माल का डिलीवरी करते तो ऑक्ट्रॉय नाका आता. ऑक्ट्रॉय को हम हिंदी में बोलते हैं जकात नाका. मराठीमध्ये पण त्यांना आपण सांगते जकात. जकात म्हणजे ऑक्ट्रॉय. तो ऑक्ट्रॉय नाका से हम पास करते तो हमें ऑक्ट्रॉय ड्यूटी भरनी पड़ती. वैसे ही अगर हम गुड्स की जगह सर्विस प्रोवाइड करते तो हमें सर्विस टैक्स भरना पड़ता. हमारे इंडिया में, ये तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स लिख रहा हूं,
ऐसे बहुत सारे टाइप के टैक्सेस थे। मैन्युफैक्चर करते तो एक्साइज ड्यूटी लगती, माल बेचते तो वैट सीएसटी लगता, जकात नाका पार कराते तो ऑक्ट्रॉय ड्यूटी लगती, सर्विस प्रोवाइड करते तो सर्विस टैक्स लगता। तो गवर्नमेंट ने बोला ये सब बंद। नाउ ऑल दिस नॉट रिक्वायर्ड, वन नेशन वन टैक्स। तो आज क्या लगता है बॉस, इन सबके बदले में क्या लगता है? Yes. Yes. I hope everybody understand what is GST. So can I also say now that GST खुद में कोई टैक्स बना नहीं है, but GST has subsumed, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, GST has subsumed all the other indirect taxes. मतलब बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस से क्या बन गया? जीएसटी। तो क्या ये मैं मान सकता हूं आज की जीएसटी अपने आप में कोई टैक्स डायरेक्टली नहीं आया? ये तो क्या था, अलग 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 नामों से लगता था, अब एक ही नाम से लगेगा, जीएसटी। ओके, इसका सबसे बड़ा फायदा जो आपको दिखाई दे रहा है, एज अ स्टूडेंट मुझे जो दिखाई दे रहा है, जैसे एग्जाम्पल, जब मैं सीए बन रहा था बॉस, मैं जब सीए बन रहा था 17 साल पहले, तो मैंने एक्साइज भी पढ़ा, वैट भी पढ़ा, सीएसटी भी पढ़ा, ऑक्ट्रॉय भी पढ़ा, सर्विस टैक्स भी पढ़ा। मतलब मुझे इनडायरेक्ट टैक्स में ऐसा लगता था मां कसम क्या हो रहा है लाइफ में। इवन एंटरटेनमेंट टैक्स भी पढ़ा। क्या बताऊं आप, मूवी देखने जाता था तो मूवी की टिकट के ऊपर एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। 5 स्टार होटल में जाता था, वहां पे भी एंटरटेनमेंट टैक्स लगता था। तो इतना सारा टैक्सेस पढ़ना पड़ता। अब तो एक ही पढ़ना है बॉस, दूसरा तो कुछ पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि सबके सब तो एक के अंदर ही समा गए। सो जीएसटी ने क्या किया है, जीएसटी ने सबको अपने अंदर समा लिया है। सो ऑब्वियसली एक बात समझो, इतना तो आप मानते हो कि ये सिस्टम को क्या करने के लिए पैदा हुआ था? डू यू अग्री विथ माई वर्ड और नॉट? Yes, sir. अरे हाँ कि ना? हाँ जी। Yes, sir. इतना तो आपको समझ में आ रहा है कि यह सिंप्लीफाई करने के लिए बनाया गया था। सवाल आज ये उठा रहा हूं मैं देश की सरकार को, क्या हम इसमें कामयाब हुए? दैट इज माई क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टेक्निकली हमने ये सब क्यों किया था? वी वॉन्टेड टू सिंप्लीफाई द टैक्स सिस्टम्स ऑफ माई कंट्री। आर वी एबल टू अचीव दैट गोल? Could we actually simplify the systems? The answer is no. GST is such a complicated structure. Many people have a lot of things to say. Some of them say मोदी जी ने बहुत घाई कर दी जीएसटी लाने में. Some of them say it was not well thought out before it was launched. Some of them are saying it's a good law with a bad implementation. But मैं ये बोल रहा हूं, तुम्हारा रीजन कुछ भी होने दो, क्या तुम्हारा पर्पस सॉल्व हुआ? नको। टेक्निकली आपने तो सिस्टम को कॉम्प्लेक्स कर दिया. And that is what now government should focus. And my guys, through you I would like to put a piece of advice to this Sarkar, that if you genuinely want the Indian businessmen to survive and to grow, and if you genuinely want your Make in India campaign to be successful, and if you genuinely want Atmanirbhar Bharat
to happen, then you have to simplify the GST law. आप बिलीव नहीं करेंगे बॉस, मैं आपको एक बात बता रहा हूं पर्सनल लेवल पे. जब इंडिया में सर्विस टैक्स आया था 1992 में, मुझे आज भी याद है 92 में, तब तो मैं सीए भी शुरू नहीं किया था. आई वॉज इन माई स्कूल डेज. तो ऐसे ही पेपर में मेरे को न्यूज़पेपर पढ़ने का आदत बहुत बचपन से. तो 92 में जब वो हेडलाइन आया था कि मनमोहन सिंह जी इंडिया में सर्विस टैक्स लेके आ गए, और तब उन्होंने सिर्फ 3 सर्विसेज को टैक्स किया था. तो मैंने मेरे पिताजी को बोला था कि पापा ये देखो मनमोहन जी नए टैक्स लाए इंडिया में और 3 सर्विस को टैक्स कर दिया इन्होंने. पापा बोले बेटा एक दिन रुक जा, जिस दिन ये 3 सर्विस 3000 सर्विस और 30,000 सर्विस बन जाएगी ना, तब अपने देश को समझेगा मनमोहन जी ने क्या कर दिया. फिर एज ए स्टूडेंट जब मैंने पहली बार सर्विस टैक्स पढ़ा तो 15 पेज का चैप्टर था, 15 पेज, ओनली 15 पेजेस सर्विस टैक्स. एंड आई यूज्ड टू टेल ऑल माय लाइब्रेरी फ्रेंड्स. और 10 मार्क का एग्जाम में आता था, मैं बोलता था बॉस क्या स्कोरिंग है ये, 15 पेज पढ़ने का है, 10 मार्क आएगा. हम लोग ऐसा स्कोरिंग समझ के उसको पढ़ते थे. फिर मैं टीचिंग फील्ड में आया तो सर्विस टैक्स 100 पेज का हुआ, 200 पेज, 300 पेज, 400 पेज, 500 पेज, 600 पेज, 700 पेज. क्या बोलूं मैं. उसके बाद जीएसटी आया, वैसे ही स्टार्टिंग में एकदम मस्त, ऐसा लगा वाह इतना कम है. जब मैंने पहली बार जीएसटी लॉ को देखा था 2017 में, तो यू नो व्हाट, आई हैड वन स्टेटमेंट इन माय क्लासेस. मैंने सबको बोला बॉस एज अ सीए और एज अ टीचर अपनी दुकान तो गवर्नमेंट ने बंद कर दी बॉस. इतना सिंप्लीफाई कर दिया कि क्लाइंट भी अपने पास नहीं आएगा और स्टूडेंट भी अपने पास नहीं आएगा, साला खुद से ही सीख लेगा. मैं बोला गवर्नमेंट ने मार दी अपनी दुकान पे लात. दिस वर माई वर्ड्स व्हेन आई सॉ द जीएसटी फॉर द फर्स्ट टाइम. एंड माय डियर स्टूडेंट्स, टुडे द जीएसटी लॉ इज ऑफ 3000 पेजेस. अभी पढ़ाते पढ़ाते फेफड़े बाहर आ जाते, लॉ खत्म नहीं होता. एंड इमेजिन after 3000 pages also there is no clarity. So after 3000 pages if there is no clarity, when will the clarity be? So you complexed it. Now let me tell you one more important thing today. I hope सबने लाइफ में जीएसटी का नाम तो सुना ही होगा, और आपने कभी ना कभी कोई ऐसी चीज ली होगी जिसपे आपने जीएसटी भरा भी होगा. इधर ऐसा कोई भी एक बच्चा नहीं होगा जिसने जीएसटी का नाम नहीं सुना है. आई एम श्योर. कोई है ऐसा? एनीबडी हु हैज नॉट हर्ड जीएसटी? नोबडी. ओके आदित्य, इफ यू वांट टू गिव मी एन एग्जांपल कि तुमने लाइफ में जीएसटी किधर पे किया है, एनी वन एग्जांपल जिधर तुमने जीएसटी पे किया है. Any one example where you have paid GST, Aditya? Can you hear me? लगता है बेचारा नेटवर्क इशू में जी रहा है. ऐश्वर्या, any one example on which you must have paid GST? Yes, sir. किधर पे किया है? Refrigerator. रेफ्रिजरेटर लेते वक्त यू पेड जीएसटी. ओके, दैट इज एफएमसीजी आइटम. वेरी गुड. अक्षय, ओके, यू हैव पेड जीएसटी व्हाइल यूजिंग अ रेस्टोरेंट सर्विस. वेरी गुड. फूड सर्विस, शाबाश. अमित,
सर लोगों जूते पे हाँ, शूज सर okay, when you bought shoes you had to pay GST. Okay, okay. Catherine, For all the daily consumption items. example, give me example. Perfect, एक ही item चाहिए. हाँ, only one, Catherine, only one. Biscuits and all. Biscuits पे did you pay GST? No. No. ध्यान से सोच कैथरीन, where did you pay GST? Catherine, no. Okay, Dhruvi, where did you pay GST? Sir, theaters में. Okay, you paid GST in a theater by buying a moving ticket. Okay, great. So Dishita, where have you paid GST? Sir, by taking admission in colleges. कॉलेज के फीस में जीएसटी नहीं लगा है बेटा, नहीं लगा है. Hotels. ओके, होटल. ईरम, वेयर हैव यू पेड जीएसटी? Sir, flight ticket. ओके, ग्रेट. हर्ष, वेयर हैव यू पेड जीएसटी? सर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल फोन या लैपटॉप या उसके भी ओके. केदार, वेयर हैव यू पेड जीएसटी? Buying clothes, sir. शाबाश, कपड़े पे जीएसटी लगता है. लवली. मनुश्री, वेयर हैव यू पेड जीएसटी? मनुश्री, Sir, railway tickets. रेलवे टिकट्स. रेलवे इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ जीएसटी. रेलवे टिकट पे जीएसटी लगा है? सोच के बोलो. निशी, वेयर हैव यू पेड जीएसटी? So, while buying basic stationery or something. Okay, while buying stationery. Okay, Raghav, have you paid GST? लैपटॉप खरीदते हैं. Shabash. Rukaya, have you paid GST? Yes, sir. My While buying online food. phone. Okay, Samir, have you paid GST? Ordering online food. Okay, ordering online food. Okay, Samir, what about you? फोन लिया था तभी मैंने. फोन के ऊपर जीएसटी भरा है. गुड. सैम. Clothes, electronics and restaurant. Okay, this is what you have paid. Serish, what about you? Food grains. Food grains is not in GST, beta. So, those packaged ones. Okay, packaged food, yes, there is a GST. Shruti, where have you paid GST? Shruti, can you hear me? I think so. नेटवर्क आवाज नहीं जा रही है. विराज, हाँ सर. where have you paid GST, बेटा? स्टडी सर्कल. Shabash. This is what the answer I wanted. Lovely. Okay. So guys, you have all paid GST some or the other time. So everybody is aware about the word. But you know what? Today I will tell you the concept of this word. नाम तो सबको पता होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. व्हाट्स न्यू इन दैट? बट लेट मी टेल यू द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ जीएसटी. You know what? Let's see this. I'm sure if you listen to this, you will appreciate the entire story behind it. Boss, before GST, India was a fragmented market. Anybody can explain me the word fragmented market? Can anybody explain me the word fragmented market? बिखरा हुआ. Correct, Viraj. बिखरा हुआ. Lovely word. Lovely word.
और अपना देश ऐसा ही था। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना मेरा एग्जाम्पल। सपोज मुंबई, गुजरात, Mumbai obviously is in Maharashtra and Gujarat is a state. Supposedly मुंबई में एक सेलर होता था और सपोज उसको कोई बायर मिल जाता था गुजरात में। ध्यान से सुनना, अगर आपको ये स्टोरी अगर आपने सुन ली और अगर ये स्टोरी आपके दिमाग में बैठ गई तो धरती पे आपका जीएसटी का कॉन्सेप्ट कोई नहीं ला पाएगा। मेरे सिर्फ ये जो छोटा सा पार्ट मैं पढ़ा रहा हूं, ये पार्ट तो मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं देता किसी को, ये तो मैं रिकॉर्ड करता भी नहीं हूं, बिकॉज अगर ये रिकॉर्ड कर दिया तो मेरा यूएसपी खत्म हो जाएगा। सो आई डोंट रिकॉर्ड दिस पार्ट ऑफ माइंड, बट इफ यू अंडरस्टैंड दिस यू विल नेवर क्वेश्चन मी अबाउट जीएसटी लॉ। सो ध्यान से सुनना, एक अच्छी स्टोरी सुना रहा हूं मैं आपको कि एक बंदा है मुंबई में, सेलर है, उसको गुजरात में एक इंक्वायरी आती है ऑर्डर के लिए, बायर गुजरात में बैठा है। तो मुंबई वाला इस गुजरात वाले को कोटेशन भेजता है। आपको पता होगा seller has to give buyer a quotation and if buyer will like it then only buyer will buy, am I right? अब वो कोटेशन कैसे भेजता है? वो बोलता है प्राइस ऑफ द गुड्स सपोज 100 रुपी, उस पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट को मुझे वैट देना पड़ेगा 12 रुपया। 12% वैट था वो जमाने में, 12% वैट वो जमाने में, आपको अभी याद रखने की जरूरत नहीं है। प्लस क्योंकि मैं माल बेच रहा हूं तो सीएसटी लगेगा 2%, क्योंकि मैं आउट ऑफ द स्टेट बेच रहा हूं तो मुझे सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को भी टैक्स देना पड़ेगा 2%। प्लस महाराष्ट्र से गुजरात का बॉर्डर पार करूंगा तो ऑक्ट्रॉय भी देना पड़ेगा, प्रिज्यूमिंग ऑक्ट्रॉय टू बी 2 रुपीज। सब मिला के इफ यू नोटिस this comes to 116. I hope I have added it right. सही ऐड किया है मैंने? हाँ सर। वेरी गुड अमित। 116 रुपए माने मैं, अमित देखो समझा, मैं मुंबई में बैठ के गुजरात में कोटेशन भेज रहा हूं 116 रुपए का। ये बायर सिर्फ मुझसे तो कोटेशन नहीं मंगवा रहा है, ऑब्वियसली वो काफी लोगों से कोटेशन मंगवा रहा है। अब उसने गुजरात का एक लोकल बंदा पकड़ा और बोला तू कोटेशन दे। तो गुजरात के बंदे ने क्या कोटेशन दिया वो देखो, उसने बोला गुड्स का 100 रुपया, गुजरात टू गुजरात माल जा रहा है, वैट 12 रुपया, क्योंकि गुजरात का स्टेट वैल्यू एडेड टैक्स भी 12% था। अब माल गुजरात का गुजरात में है तो सीएसटी नहीं लगेगा, माल गुजरात का गुजरात में है तो ऑक्ट्रॉय नहीं लगेगा। तो उसने बोला सर मैं 112 रुपए में माल दूंगा। अब उसको उसने 112 का कोटेशन नहीं दिया, उसने और स्मार्ट गेम खेला। उसने बोला उसको खुद भी तो मालूम है कि महाराष्ट्र वाला तो ऐसे भी 116 का ही देने वाला है, मालूम है ना उसको, शाना है, वो भी बिजनेसमैन है बॉस। तुम लोग को बिजनेसमैन को येड़ा नहीं समझना, उसको मालूम है महाराष्ट्र से कोटेशन तो 116 का ही आएगा। तो उसने क्या किया, उसने अपना थोड़ा सा प्रॉफिट और बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया? 3 रुपया, और इसको कोटेशन दे डाला 115 का। अब गुजरात का बायर कंफ्यूजन में कि अगर मैं महाराष्ट्र से मंगवाऊं तो 16 रुपया, 116 रुपया लगेगा, और गुजरात तो गुजरात मंगाऊं 115 रुपया लगेगा।
और ऊपर से गुजरात का लोकल आदमी है, तो उसने बोला साहब मैं डिलीवरी भी जल्दी करूंगा, सेम आइटम। टेल मी वन थिंग, ऐसे केसेस में क्या गुजरात का ऑर्डर मुंबई वाले को मिलेगा? नहीं मिलेगा। कैन यू सी दिस? नो सर। कैन यू सी दिस? एक जगह तुम इंडिया के यूनिटी की बात करते हो, एक जगह तुम इंडिया के इंटेग्रिटी की बात करते हो, वी आर वन, वी आर ब्रदर सिस्टर। काय का ब्रदर सिस्टर तुम्हारा? मुंबई एंड गुजरात आर फाइटिंग, कांट यू सी दिस? मुंबई विल बी एट अ लॉस, और ये गुजरात का बायर गुजरात से ही माल खरीदेगा, क्योंकि ऑब्वियस है कि उसको गुजरात का ही बेटर प्राइस मिलेगा। मुंबई वाला चाहे तो भी गुजरात से लड़ नहीं सकता है, क्योंकि ऑलरेडी वो बैकफुट पे है, और वो भी एक बैकफुट पे नहीं है, दो बैकफुट पे। कौन से दो बैकफुट पे? विच आर द टू बैकफुट्स? कैन एनीबडी टेल मी? क्या क्या? करेक्ट, CST and Octroi. CST एंड ऑक्ट्रॉय, डबल बैकफुट। अबे मैं डबल बैकफुट से कैसा खेलूं? मीन्स नाउ आई होप विराज यू अंडरस्टूड द मीनिंग। इंडिया बड़ा बिखरा हुआ मार्केट था। देयर Yes, sir. टेक्निकली स्टेट्स वर कंपीटिंग बिटवीन स्टेट्स। क्या बात है यार, ये क्या बात होती है? हाउ विल यू ग्रो? How will you grow? If you want to grow, you don't have to compete amongst yourself. You have to compete with the outsider. See China, पूरे वर्ल्ड पे राज करके बैठा है। वो क्या इंटरनल कंपटीशन कर रहा है? नहीं, बट इंडिया इंटरनली compete करने में इतना बिजी हो गया कि मुंबई का, आई मीन टू से महाराष्ट्र का सीएम अपने स्टेट के लिए कुछ फेवरेबल पॉलिसी बनाता है, गुजरात का सीएम वहां के लोगों के लिए कुछ फेवरेबल पॉलिसी बनाता है। अरे यार, तुम पहले इंडिया हो। आज मुझे वो पिक्चर का डायलॉग याद आता है। शाहरुख खान था वो मूवी में, उसका नाम था, मूवी का था चक दे। एनीबडी इज व्हाट? हॉकी पे था पिक्चर। हाँ सर। Yes, sir. चक दे मूवी में शाहरुख खान का मुझे वो डायलॉग याद आता है कि मुझे सिर्फ एक मुल्क का नाम सुनाई देता है। एनीबडी रिमेंबर द डायलॉग? Yeah, sir. हाँ हाँ सर। और मुझे ऐसा लगता है ये क्या कर रहे हैं अपन? वाई आर वी कंपीटिंग अमॉन्ग्स्ट आवर सेल्फ? ये तुम क्या घान करके रखा है? किधर वैट लगता है, ना किधर ऑक्ट्रॉय लगता है, ना किधर ऑक्ट्रॉय लगता ही नहीं है, ना किधर सीएसटी लगता ही नहीं है। दैट वाज वन प्रॉब्लम। नाउ देयर इज नो टेंशन। नाउ देयर इज नो टेंशन। व्हाई देयर इज नो टेंशन बोलो? GST. लवली। वन नेशन वन टैक्स। इन शॉर्ट, आज क्या हो रहा है? गुजरात में बैठा हुआ बायर जब मुंबई वाले को कांटेक्ट कर रहा है, तो मुंबई वाला बोलता है देख मेरा प्राइस 100, जीएसटी 18, 118। गुजरात में बैठा हुआ बंदा जब गुजराती से कांटेक्ट कर रहा है, गुजरात लोकल ट्रेडर से, तो वो भी बोलता है देख मेरा 100, गवर्नमेंट का 18, 118, ये भी 118, ये भी 118। क्या हुआ बॉस? इससे क्या हुआ बताओ? इससे क्या बात हुआ? So the price is equal, so that Gujarat seller can give the contract to Mumbai. Correct. Anybody? Boss, this is called as level playing field. क्या बोलेंगे इसको? बोलो। Well playing. करेक्ट, दिस इज द लेवल प्लेइंग फील्ड। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दो। आई होप एवरीबडी हैज अंडरस्टूड द रियल रीजन बिहाइंड जीएसटी। Yes sir. Yes, sir. सच्ची सच्ची Yes, बोलो, sir. सबको समझ गया? हाँ सर समझा। Yes, sir. क्या हो गया? कौन खड़ा हो गया? समीर
इसका कुछ डिसएडवांटेज है क्या अपने पास? अरे हाँ हाँ बहुत सारे हैं। पहले एडवांटेज तो सुन ले। एडवांटेज समझा? यस सर। ओके Serish, is it very very clear the advantage? Yes, sir. Kedar, Yes, sir. Manu, नेटवर्क इशू में मर गई। कैथरीन, ध्रुवी, Yes, sir. great. Harsh, did you understand this? Harsh, गेला। ऐश्वर्या, Yes, sir. okay. So I presume everybody has understood the first advantage, that India becomes one market. So the first biggest advantage of GST is India becomes one market. So one nation, one tax, one market. Everybody understood this concept of the slogan? अरे बोलो यार, तो मैं आगे का पॉइंट पढ़ा हूं। वन नेशन, वन टैक्स, वन मार्केट। यस सर। Yes, sir. Okay. Will you be able to explain this to your parents if you want to? क्या आप जीएसटी का ये पॉइंट आप सब बता पाओगे आपके पेरेंट्स को? हाँ सर। आई वॉन्ट वन होमवर्क फॉर टुडे। जो मैंने आज पढ़ाया है आपको, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपको अपने पेरेंट्स को या अपने एल्डर ब्रदर सिस्टर्स को पढ़ा के ये समझाना है कि जीएसटी क्यों आया। कर पाओगे क्या ये? अगर आपको लगे कि आपके पेरेंट्स नहीं समझ सकते तो प्लीज ऐसा मत सोचना। अगर आपके पेरेंट्स कम एजुकेटेड है तो भी समझ पाएंगे, बट आपको समझा के दिखाना है उनको। विल यू बी एबल टू डू दैट? यस सर। और कल आपको मुझे बताना है कि आपने ये कॉन्सेप्ट किसको पढ़ाया। विल यू टेल मी दिस? Yes, sir. Yes, Yes, sir. बट प्लीज गाइस, जिसको पढ़ा उसको बोलना आगे मत फैलाए, और अगर फैलाए तो मेरा नाम ले। कहीं ना कहीं मेरे पॉपुलैरिटी जाना नहीं चाहिए, राइट? प्लीज टेक केयर अबाउट मी ऑल्सो। आई शुड गेट सम रॉयल्टी फॉर दिस। हाँ सर, आपकी मार्केटिंग कर देंगे। थैंक यू अमित, थैंक यू। बट दो बात याद रखना। हाँ करेक्ट, वो आता है ना आजकल पीसी मतलब पिक्चर क्रेडिट, वीसी मतलब वीडियो क्रेडिट, तो प्लीज थोड़ा सा सीसी देना, कॉन्सेप्ट क्रेडिट। थैंक यू अमित, यू अंडरस्टूड दैट, शाबाश। बट अमित, हो सके तो तेरे नाना जी को समझाना एंड देन टेल मी हाउ इट वाज। हाँ सर, उनको समझा दूंगा। थैंक यू। सो लेट्स। सर लेकिन ये डिसएडवांटेज भी है ना? क्यों डिसएडवांटेज है बताओ? 116 का मिल रहा था तो 118 पे। अरे नहीं, सॉरी राघव, वो 18% का रेट तो मैंने प्रिज्यूम किया है। अच्छा। अगर आप जीएसटी का 15% का रेट प्रिज्यूम करोगे तो 115। मेरा समझाने का पर्पस था राघव कि दोनों कम से कम इक्वल लेवल पे आ गए। हाँ सर। अब मैं उसको सस्ता करके दिखाता हूं। राघव ध्यान से सुनना ये एग्जांपल। राघव ये सिर्फ तुम्हारे लिए, ध्यान से गाइस। इफ यू अंडरस्टैंड दिस, आई एम टेलिंग यू, यू विल बी ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड इन जीएसटी। एंड गाइस, ये सब जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, ये दुनिया के किसी भी किताब में नहीं मिलेगा। नो बुक्स विल एक्सप्लेन यू लाइक दिस कि पहले इंडिया में क्या था, अब इंडिया में क्या है। बॉस, बुक्स तो सीधा लॉ पढ़ाएगा, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। But if you couldn't understand all this, what is the need of, or what is the purpose of you reading the law? So guys, here comes the second very very important point. Can I start? यस सर। चलो, एवरीबडी very मतलब ये थोड़ा सा टेक्निकल है। आपको ब्रेक चाहिए क्या? टेक्निकल है बॉस, चाहिए तो 5 मिनट का ब्रेक ले लो, कि आप लोगों को मजा आ रहा है। अरे बोलो 5 मिनट का ब्रेक चाहिए तो अभी ले लो, अभी लंबा चलने वाला है ये पॉइंट। आर यू फ्रेश? Yes, sir. Yes, sir.
will you be able to digest this point? Yes, sir. ध्यान से, let's begin then. I am coming to the pre-GST regime. I am coming to the pre-GST regime. Correct? We are on the pre-GST. Let's see this. मैंने आपको पहला सबसे बड़ा एडवांटेज बताया है. सबसे बड़ा एडवांटेज. What is the first advantage? भूलना मत. मालूम पड़ा 1 घंटा बोला, मेहनत गया पानी में. What is the first advantage? One market. But what was the disadvantage? What was the disadvantage? Sir, India was a fragmented nation. Shabash. India was a fragmented market. And now India is one market. So that is one biggest advantage of the GST what I have taught today. I come to my second point. And Raghav, please listen to it. Because Raghav, आपने अभी अभी बोला कि पहले वो 116 का मिलता था, अब वो 118 में पड़ेगा, तो कस्टमर के लिए नुकसान है. Now I will prove it. Now I will prove it that why it is beneficial for customer. As a customer, हमको GST से क्या फायदा होता है? I am coming to that. So pre-GST देखो ध्यान से क्या होता था. Can I start? Everybody ready? Yes, sir. Everybody ready? Very much attentive? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Here comes my example. Pre-GST, एक एग्जाम्पल लेता हूं आपके लिए कि यहां पे बैठा है मेरा समीर. He is a businessman or a trader. जिसका काम है सामान खरीदना और सामान बेचना. मेरे एक बात बताओ, प्री जीएसटी समीर अगर अपने स्टेट के बाहर से माल लेगा, प्री जीएसटी समीर अपने स्टेट के बाहर से माल लेगा, तो उसको प्राइस ऑफ द गुड्स तो लगेगा ही लगेगा. हाँ या ना? Yes, sir. और क्या लगेगा? वैट सीएसटी तो ये समीर ने माल तो ले लिया. ये समीर का परचेज. Obviously, Samir's purchase will be on the debit side because it's a purchase. Now, Samir is gonna sell these goods. In his own state. I repeat, he's gonna sell his goods in his own state. अभी 100 का माल है, उसको आते आते 116 हो गया. ये तो समीर का कॉस्ट है बॉस. समीर का कॉस्ट है. समीर चैरिटी करेगा क्या? उसको देख के भी लगता है क्या तुम लोगों की वो चैरिटी करेगा? नहीं बॉस. उसने तो मुझे याद है कि he told me that he wants to become an entrepreneur. याद है समीर, तूने मुझे बोला था. Yes sir, याद है. उसने मुझे बोला था I want to become an entrepreneur, I want to start my own business. तो डू यू थिंक ही इज सो फुलिश कि 116 में खरीद के 116 में बेचेगा? नो, ही इज नॉट दैट फुलिश. मैं प्रिज्यूम कर रहा हूं कि समीर 4 रुपया प्रॉफिट रख रहा है. 4 रुपया प्रॉफिट. मैं यहां पे आपको लिख के भी देता हूं ताकि आपको याद रहे. ये एग्जाम्पल मेरा 4 रुपया प्रॉफिट रखता है, तो उसको मिलता है 120 का सेलिंग प्राइस, और यहां पे समीर 120 रुपए में वो माल बेच देता है. तो कस्टमर को 120 रुपए में माल पड़ता है. हाँ या ना? अरे बोलो ना यार. हाँ सर. Yes, sir. अब ऑब्वियसली उसके ऊपर वैट लगेगा.
क्योंकि उसने सेम स्टेट में माल बेचा है 12%, तो 120 का 12%, 12 जा 14.4 लगेगा. I hope you understood how did I get 14.4. In short, कस्टमर को ये गुड्स पड़ेगा 134.4, ऐसा आपको लगता है, बट विच इज नॉट राइट. विच इज नॉट राइट बिकॉज जब ये वैट भरने की लायबिलिटी आएगी, ये वैट भरने की लायबिलिटी आएगी, दिस इज नॉट राइट. ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं. ये वैट भरने की लायबिलिटी जब आएगी तो समीर बोलेगा गवर्नमेंट को कि बॉस मैं ऑलरेडी 12 रुपया तो भर चुका हूं. कितना भर चुका हूं? कैन यू सी माई एरो? कैन एवरीबडी सी माई एरो? Yes, sir. तो वो बोलेगा सर मेरा 14 रुपया 40 पैसे में से मैं 12 रुपया तो भर चुका हूं, तो प्लीज माफ करो मुझे, मैं सिर्फ 2 रुपया 40 पैसा और भरूंगा. तब भी जाके कस्टमर को वो गुड्स कितने में मिलेंगे? आई रिपीट, कस्टमर को वो गुड्स कितने में मिलेंगे? 192.4. एवरीबडी इज वेरी वेरी क्लियर? Yes, sir. Everybody very very clear? Yes, sir. This is the final price of the goods to the customer. Everybody very very clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay, now come to the post GST era. Sameer is still a businessman. Now Sameer purchases good of 100. To keep the example same, Raghav, I take this GST at 16% ताकि this becomes 116. This becomes 116. And now again Sameer is same Sameer. He wants to add 4. तो उसका सेलिंग प्राइस कितना आएगा? बोलो बोलो. 120 rupees. अब अगर समीर 120 में बेचेगा तो 120 का 16% जीएसटी बताओ. 16% जीएसटी. एवरीबडी 16% जीएसटी. 120 का 16% निकालो. 19.2 जीएसटी भरेगा. अरे हाँ या ना? Yes, sir. यस और नो? Yes. Yes. ओके, 19.2 जीएसटी भरेगा. -16 पहले का भरा हुआ था. अरे हाँ या ना? सेम एरो. Yes, sir. तो अब वो सिर्फ 3 रुपीज 20 पैसा जीएसटी भरेगा. Yes, sir. Yes, sir. आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, sir. Yes, sir. Now the selling price of the goods will become 123.20. Are you getting this point? Yes, sir. Yes. Now please I want you to take back the example. Go back. Go back. If you notice this point, तो मुझे बात बताओ, इसमें वैट और वैट कौन सा परसेंट लिया हमने? 12%. अरे बोलो यार. 12%. स्टॉप. नीचे आओ. पर इधर जीएसटी हमने कितना परसेंट लिया? 16%. 16%. वाई 16 लिया हमने ये 16 ये सोच के लिया कि 116 को मैच करेंगे. पर अगर गवर्नमेंट ने जब वैट से लेकर जीएसटी में ट्रांजिशन किया तो गवर्नमेंट ने ट्रांजिशन में बिजनेसमैन को एक वादा किया था. क्या वादा? कि अगर हम आपका रेट बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली कस्टमर, देखो कस्टमर को गुड्स महंगे पड़ रहे हैं
यहाँ 122.4 में थे, यहाँ 123.2 में। अगर कस्टमर को गुड्स महंगे पड़ेंगे तो इसकी वजह से तो देश में महंगाई बढ़ जाएगी। अरे हाँ या ना? हाँ सर। तो बॉस यहाँ पे सरकार ने क्या वादा किया था जीएसटी लाने के टाइम पे? सिंपल वादा कि अगर तुमको 100 पे 12, 2, 116 लग रहा था, अब हम ये नहीं लगाएंगे, अब हम तुमको 100 पे सीधा जीएसटी लगाएंगे 12। तो तुमको पड़ गया कितने में बोलो? 112. उसमें तुमने अपना 4 रुपया प्रॉफिट रखा तो कितना हुआ? 116. अब तुम बेचोगे 116 में, और बेचने के 116 पे जीएसटी वापस लगेगा 12%। चलो 116 का 12% निकालो, कैलसी लेके 116 का 12%। 13.92 में से तुम 12 तो भर चुके थे, so you now pay 1.92. So what is the final price to the customer? 17.92. तो जो कस्टमर को 122 रुपीज में पड़ता था वो अब 118 रुपए में पड़ेगा। कस्टमर को 4 रुपए का फायदा हुआ। I hope everybody is very clear. Yes, sir. Yes, sir. Means here comes my second disadvantage, second advantage. मेरा पहला एडवांटेज क्या था, कौन बोलेगा? फर्स्ट एडवांटेज, my second advantage is it is complete set off. अब आपको पूरा सेट ऑफ मिलेगा। आप मुझे बता सकते हो क्या एक बात, इस वाले एग्जाम्पल में किस चीज का सेट ऑफ हमें नहीं मिल रहा था? कैन एनीबडी टेल मी किस चीज का सेट ऑफ हमें नहीं मिल रहा था? वैट का तो वैट के सामने मिल गया, किस चीज का सेट ऑफ नहीं मिला? जी का है वहां? यस अक्षय, यस अक्षय, CST इन ऑक्ट्रॉय। बट यहाँ पे देर इज नो CST इन ऑक्ट्रॉय। जीएसटी तो जीएसटी, तो हमें पूरा सेट ऑफ मिल गया। इसको बोलते हैं कंप्लीट सेट ऑफ। क्या बोलते हैं, वापस बोलो। और इसको लॉ में वर्ड क्या यूज किया गया है? लॉ में इसको बोला गया है स्ट्रीमलाइन क्रेडिट। That is the word which is used by the book, streamline credit. There is a complete credit system. There is smooth credit available of GST against GST. इसको सीमलेस क्रेडिट भी बोलते हैं। I repeat, we call this a seamless credit also. Streamline credit, seamless credit, complete set of, आपको जो समझ में आए। And third, because of this, inflation will be under control. महंगाई कम करने में ये मदद करेगा, और मैंने आपको बताया कैसे करेगा। इन्फ्लेशन विल बी अंडर कंट्रोल। Inflation will be under control. Everybody's understood this? Yes, sir. Yes, sir. हाँ सर। All set? So here we complete the first basic part of GST. And I hope everybody has understood here. Yes
So here it is, the index of indirect taxes, 50 marks, in which I just said that हमने एक overview दिया है. So we are just going to chapter number 11. I will request all of you to come to chapter number 11. So 6:31. Okay, so we all come to 6:31. Thanks, Dishita. And here it is. And let's see what we studied. Everybody on page 632? Yes, sir. Everybody on 632? Ready? So let's do the markings and try to understand exactly what was explained to you in the first 1 hour of the class. Taxation is one of the essential and decisive elements in the working of the machinery of a nation. It forms a quintessential part of the development of any country. Don't underline it. We are just reading for the first time and for the last time. Are you getting me? For the first and the last time. इसके बाद आप उस वर्ड्स को कभी नहीं पढ़ेंगे. आप सिर्फ क्या पढ़ेंगे? जो मैं अंडरलाइन करके दूंगा. जो मैं अंडरलाइन नहीं करूंगा ये आप मेरे साथ आज पहली और आखिरी बार पढ़ेंगे. So we all know that taxation forms a very important part of our economy. बिना टैक्स के तो हमारा देश भी नहीं चल सकता. देश की सरकार को रेवेन्यू तो चाहिए ही चाहिए, तो ही तो गवर्नमेंट विल बी एबल टू डू पब्लिक एक्सपेंडिचर. आज पब्लिक स्कूल्स बनती है, पब्लिक रोड्स बनते हैं, पब्लिक डैम्स बनता है. ये किसके पैसों से बनता है? टैक्स के पैसों से. So we all know that the revenue from the tax is a very important revenue for this government. And therefore government will do everything to safeguard its revenue. We all know the revenue which is collected in the form of tax will be used for goods and services of public utility, like providing infrastructure facility to all of us. आपको पता है मुंबई में हर जगह मेट्रो बन रही है, हाँ कि ना? कहां से मेट्रो निकलने वाली है क्या पता. पर उस मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए पैसा कहां से आ रहा है? ऑब्वियसली फ्रॉम द टैक्स पेयर्स पॉकेट. इवन फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आई गेस मुंबई टू चर्चगेट का रेलवे टिकट, कैन एनीबडी टेल मी हाउ मच इट इज? 20 rupees. ओनली 20 रुपीज. Sir, 20. 20 रुपए में कौन पहुंचाता है यार? 20 रुपए में 25 किलोमीटर लेके जाता है. ये आपको इतना सब्सिडाइज रेट पे क्यों मिलता है? क्योंकि उसकी फंडिंग भी टैक्स पेयर के पैसे से होती है. इवन फैसिलिटीज लाइक रेन शेल्टर्स, कॉमन एरियाज, सैनिटेशन फैसिलिटीज. आपने नोटिस किया होगा जगह जगह पे, मुंबई में भी देखा होगा पब्लिक शौचालय होता है. शौचालय होता है कि नहीं भाई? हम सड़क से कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, वॉशरूम आ जाती है तो 2 मिनट हम रुका देते हैं शौचालय के बाजू में. तो वो बनाने के लिए भी टैक्स पेयर का पैसा ही चाहिए होता है. एंड ऑल सच एम्यूनिटीज विच आर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. इसमें इन्होंने मेन बात तो लिखा नहीं है जो मैं आपको बताऊंगा बॉस. मेडिकल फैसिलिटी, आपको पता है
आज भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में इलाज फ्री में किया जाता है, यू वोंट बिलीव। तो वो पैसा कहां से आ रहा है? वो टैक्स पेयर का पैसा है। इफ आई एम द टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री, माई मनी इज गोइंग टू अ BMC हॉस्पिटल टू ट्रीट अ पेशेंट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो बाइंग, आई रिपीट, आप सबको एक बात समझना बहुत जरूरी है, दैट बाई पेइंग अ टैक्स we are not only discharging our statutory duty as a citizen of the country, but we are also indirectly helping the poor and the marginal people for availing better facilities. I hope this concept is very, very clear to you. But nothing is to be remembered from this paragraph. Please इसको ऐसे कट कर दीजिए। इसमें आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ये हमने सिर्फ जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा था और वो नॉलेज अभी आपके दिमाग में बैठ गया है। सो देयर इज नो नीड फॉर एग्जाम टू रिवाइज इट। कैन वी गो टू द सेकेंड पैराग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. ओके। काफी लोगों को मन में ऐसा लगता है कि टैक्स एक तरह का पेनल्टी है। अरे लोग तो टैक्स से ऐसे घबराते हैं। मुझसे पूछो, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। क्लाइंट हमारे पास आके बोलता है, सर कुछ भी करो बस टैक्स मत भरवाओ। आपने भी घर पे कभी अपने पेरेंट्स से सुना होगा टैक्स के बारे में। आपके पेरेंट्स के भी कोई CA होंगे कि नहीं होंगे मुझे पता नहीं, पर होने तो चाहिए। आप में से किसके पेरेंट बिजनेस में हैं? एनीबडी हुज पेरेंट इज इन बिजनेस? मेरे सर। समीर, आपके पिताजी के कोई CA हैं क्या बेटा? नहीं सर, वो खुद से कर लेते हैं। वेरी गुड। दिशिता, आपके पापा के कोई CA? Yes, sir. ओके। तो हमारे पास लोग आके बोलते हैं टैक्स मत भरवाओ। सो प्लीज गाइस, इट इज नॉट अ पेनल्टी। A tax can be said to be a non-penal, yet a compulsory transfer of resources from private to public sector on the basis of some criteria. Taxes are collected for serving the primary purpose of providing sufficient revenue to the state and have become a mechanism through which social and economic objective of a welfare state could be achieved. This is one of the biggest principle of tax, कि we want to promote social welfare, and to promote social welfare the government of our country needs taxpayers' money. Every amount which is contributed by you and me goes towards providing a better infrastructure facilities, not only for the poor people but for the public at large. The same is also utilized towards bringing up the rural areas and social well-being of general public. Don't you think so, guys, that Mumbai is very much highly populated? And is the population of Mumbai are all born and brought up in Mumbai? आपको क्या लगता है मुंबई में जितने लोग रहते हैं वो सब इधर ही पैदा हुए थे? Not necessary. तो सर आपको लगता है कि काफी लोग माइग्रेट होके मुंबई में आते हैं? Yes, sir. yes Do you feel that Mumbai attracts many people across India? Yes, sir. There is a image about our city. People always say मुंबई में जाएंगे तो पैसा तो बना ही लेंगे. That's a general feeling. But कितने सालों तक ऐसा चलेगा? One day we have to make sure that every small part of this country is like Mumbai. And people don't have to migrate, nor have to leave their families behind to earn their bread and butter. And this is possible through tax.
taxation system is instrumental in removing poverty and inequality from the society. Rich people are taxed more because they have a ability to pay. On the other hand, tax reforms are fundamental equipment in strategy development, aiming at the holistic growth of this country. And thus we want our tax system to be highly efficient, and we want that lot of reforms in taxation should be brought in this country. Now this is all general knowledge what we shared. So please, I would request you to cut this paragraph, and I want you to come to the third paragraph. चालू करें आगे. Yes, sir. थर्ड पैराग्राफ शुरू करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस इन इंडिया. वी नो दैट. विच आर द टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस? आज ही पढ़ा है हमने. Direct tax and indirect tax. Can you pass a burden in direct tax? No, sir. You can't. Can you pass the burden in indirect taxes? Yes, sir. Yes, sir. Correct. And that is what is explained. There are two types of taxes in India. Direct tax, which is levied directly and where the burden cannot be passed. Indirect tax, which is levied indirectly and the burden is passed on to the final consumer. That's the ultimate consumer. Income tax is levied on income, and indirect taxes is laid on goods and services. In one, there is an immediate burden. In two, that is the ultimate burden. And I have made you understand all this. So there is no need of reading this paragraph. And when I cut this, I mean it. नहीं पढ़ना है मतलब नहीं पढ़ना है. सिर्फ आज ही पढ़ना है. इसके बाद कभी भी नहीं पढ़ना है. Is everybody able to understand how we are doing this? Yes, sir. मैं डायरेक्टली ब्लाइंडली कट नहीं कर रहा हूं. मैं रीड कर रहा हूं और फिर कट कर रहा हूं. So that you don't feel that there is something which is omitted. I am even explaining it, but not asking you to remember it. Coming to the fourth paragraph, we know that GST का डे क्या था. हमने आज ही पढ़ा. बोलो. First July 2013. क्या मैंने ये पढ़ाया आज ही आपको? Yes, sir. It is one of the largest tax reforms in independent India. Yes, we are right. It transforms the system of taxation to a digital world by adopting the latest information technology. And what is the technology what we use in GST? Let me tell you the name of the technology. By the way, the name of the technology is called as GSTIN. GST India Network. Please mark this, very, very important. The digital platform what we use is called as GSTIN. Now let's see the difference between direct and indirect taxes. We have done this. Direct tax is on income, wealth, profession, etc. Indirect tax is on goods and services. Direct tax is directly paid to the government of India. Indirect tax you pay through an intermediary. Direct tax becomes payable when you earn the income. Indirect taxes you have to pay even before the goods or services reaches you, क्योंकि वो पहले भरना पड़ता है. Fourth, income tax and corporation tax are the main sources
of DT and customs and GST are the main sources of indirect taxes. In India, income tax is on individuals, HUF, partnership firms, limited companies, public limited companies, and indirect taxes is by everybody, whosoever uses the product or the service. That's all, guys. I finished the background. Any doubts in the background? No, sir. Any doubts in the background? No, sir. Why we come to Indian Constitution? ध्यान से सुनना बॉस. आपको पता है देश में कुछ भी होगा तो सबसे सुप्रीम है संविधान. And guys, I believe that most of you have learned constitution from me only. Even preamble भी मैंने ही आपको पढ़ाया है. So you cannot deny कि आपने मैंने नहीं पढ़ाया है. आपको याद भी होगा कोई कोई बात है. जैसे कि आर्टिकल 12 क्या है, बोलो कौन बताएगा आर्टिकल 12 क्या है? शाबाश. आर्टिकल 13 क्या है? लॉ में दो टाइप्स होते हैं, कौन बताएगा दो टाइप्स? क्या बात है. एग्जिस्टिंग लॉ एंड फ्यूचर लॉ. लवली. आर्टिकल 14 to 18 right to equality. Anybody who can tell me article 1, 2, 3? Right of the president to promulgate ordinance. क्या बात है. Power of the Serish, it is power of the president to pass ordinance. Yes, sir. Yes. शाबाश Serish. Article 213. हाय हाय, क्या बात है, क्या बात है. हक है आपको CHEET पास होने का. और अगर इसी तरह से आपने एग्जीक्यूटिव का पोर्शन भी याद रख लिया तो हक है एग्जीक्यूटिव पास होने का. That was lovely, guys. So let's come to Constitution. We all know Constitution is the supreme law. It lays down the framework defining the fundamental political principles. It establishes the structure, procedures, powers and duties and sets out the rights, the directive principles and duties. हमको पता है. Fundamental rights are given in which part of the Constitution? Part 3. क्या बात है केदार? Part 3. Directive principles are given in which part of the Constitution? Part 4. क्या बात है. So Constitution हमारा एक फाउंडिंग ब्रिक है और हमारे हर एक लॉ का माई बाप है. एंड देयरफॉर टैक्स लगाने का पावर भी कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट आर्टिकल. प्लीज यहां से मार्क करना है. आर्टिकल 246 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में 3 टाइप का लिस्ट होता है एंड इट डिस्ट्रीब्यूट्स द पावर्स between the parliament and the state legislator. Please mark article 246. Has everybody marked article 246? Okay. आगे बढ़ेंगे. By the way, जो 3 लिस्ट है उसका नाम क्या है मैं आपको लिख के देता हूं. लिस्ट 1 उसका नाम है यूनियन लिस्ट. इन्होंने नहीं लिखा है, मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं. बोलो लिस्ट 1 क्या है? यूनियन लिस्ट. लिस्ट 2 क्या है? स्टेट लिस्ट. और लिस्ट 3 क्या है? कॉन्करेंट लिस्ट. So please write down list 1 is union list. List 2
is state list. List 3 is concurrent list. I hope everybody has written these 3 lines. Everybody's written. Can I move ahead? Yes, sir. तो बोलो तो सही. Okay. See here, as I told you, इंडिया में पहले सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 3 टैक्स थे. सेंट्रल एक्साइज, कस्टम्स और सर्विस टैक्स. ये इंडिया में सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत थे. और स्टेट गवर्नमेंट के पास क्या था? स्टेट गवर्नमेंट के पास वैट, सीएसटी, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स था. दोनों के पास अलग अलग था. ये सब पुरानी रिजीम है जो मैंने आपको पढ़ाई. ये नाम मैंने पढ़ाया क्या आपको आज? क्या मैंने आपको वैट का नाम पढ़ाया था? Yes, sir. क्या मैंने ऑक्ट्रॉय के बारे में पढ़ाया था आज? Yes. क्या मैंने एंटरटेनमेंट टैक्स के बारे में पढ़ाया? Yes, sir. Correct. I did this today itself. And I hope you will be remembering it. But ये सिर्फ मैंने यहां से रीड करने के लिए मार्क किया है. प्लीज, आई एम नॉट आस्किंग यू टू रीड ऑल दिस, क्योंकि ये सब कोई मतलब का नहीं है. इंडिया में वैट भी जब आया था तो वैट का पूरा सीमलेस क्रेडिट मिलता था वैट में. क्या मिलता था वैट में? सीमलेस क्रेडिट. डिड आई एक्सप्लेन यू व्हाट इज सीमलेस क्रेडिट? Yes, sir. Yes, sir. And what is seamless credit? Seamless credit means complete set off, means there was no cascading effect of taxes. Do you understand the word cascading effect? मतलब एक का दूसरे पे टैक्स लगना. प्लीज रिमेंबर, वैट में कैस्केडिंग इफेक्ट को रिमूव किया गया था. However, जीएसटी में आपको याद होगा एक बात, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी लगाता है उसका नाम है सीजीएसटी. क्या नाम है उसका? नाम बोलो. अरे बोलो बोलो. मतलब ये वो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है. और जो जीएसटी स्टेट लगाता है उसका नाम है एसजीएसटी, दैट इज स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स. तो सपोज द जीएसटी रेट is at the rate of 18%. तो 18 को डिवाइड बाय 2 करो, कितना आएगा? 9%. तो CGST will obviously be at the 9 and SGST will always be at 9. ये इक्वल ही हो सकते हैं. They cannot be unequal. Therefore, center and states had to be given simultaneous powers to collect the taxes. And what was there in the old regime? ओल्ड regime में सेंटर के टैक्सेस अलग थे जिसके पावर सेंटर के पास थे. स्टेट के टैक्सेस अलग थे जिसके पावर स्टेट्स के पास थे. और नया रिजीम में टैक्स तो एक ही है पर वो लोग दोनों उसको आधा आधा बांट रहे हैं. समझ में आ रहा है? फर्क समझ में आ रहा है क्या? आर यू एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस?
ओल्ड रिजीम में सेंटर के टैक्सेस सेंटर लगाता था और सेंटर ही कलेक्ट करता था, स्टेट के टैक्सेस स्टेट लगाता था, स्टेट कलेक्ट करता था। इसमें टैक्स एक ही लग रहा है पर एक ही टैक्स को दोनों बांट रहे हैं। समझ में आ रहा है? हाँ सर। अगर दोनों बांटेंगे तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और अमेंडमेंट किया हमने कॉन्स्टिट्यूशन को, 101st अमेंडमेंट। क्या आपने ये पढ़ा था? कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा था? क्या आपने करंट अफेयर्स में पढ़ा था? करंट अफेयर्स में याद आ रहा है क्या? A question भी था। सीट में क्वेश्चन Question भी था इसका। क्या बात है, एग्जाम में क्वेश्चन भी आ गया। क्या आपको याद था ये 101 अमेंडमेंट? एंड लास्ट, इसके लिए हमने नया आर्टिकल लगाया, आर्टिकल 246A। 246 के साथ एक नया आर्टिकल ऐड किया, आर्टिकल 246A, जो जीएसटी लगाने में हेल्प करता है, ताकि एक ही टैक्स को दोनों कलेक्ट कर सके। Is everybody clear with this part? Okay, here we study 246 article for the first time. आपने ऑलरेडी काफी आर्टिकल्स तो पढ़े ही थे CHEET में, और आपको समझ में आ रहा है क्या कनेक्शन है CHEET का एग्जीक्यूटिव से? एटलीस्ट मुझे अभी ये तो नहीं पढ़ाना पड़ रहा है आपको कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। नहीं तो सोचो इधर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मालूम होएगा तो कैसे पढ़ेगा बच्चा। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिफरेंस and what is the connecting feature between CHEET and CS Executive. And I hope you remember my induction class in which I said that group 1 is the base of CHEET. याद आ रहा है वो बात आपको? Yes, sir. And that's the reason, if you remember, I advised everybody of you कि after CHEET अगर एक ग्रुप देना है तो कौन सा देना चाहिए? Group 1. Module 1. Why? Because module 1 is based on the CHEET. So your concepts will become clear. And that is the reason, that was my advice. And we can see that today itself in the first lecture that आपको CHEET का सब कुछ याद आ रहा है. You are thinking कि चलो properly हम लोग एकदम एक order में जा रहे हैं. And here comes Article 246A for the first time. Point number 1. Notwithstanding anything contained in 246 and 254, Parliament and legislator of every state has a power to make law with regards to GST imposed by the union or such state. Pehla change. And 2. Parliament has exclusive power to make laws with regards to GST where supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade or commerce. Everybody has underlined this? हाँ सर। Okay. We also had to amend Article 248. उसको भी अमेंड करना पड़ा, मतलब 246A नया डालना पड़ा, 248 को अमेंड करना पड़ा। 248 में रेसिड्यूअरी पावर थे, तो 248(1) सब्जेक्ट उसमें चेंज किया, सब्जेक्ट टू 246A, पार्लियामेंट हैज एक्सक्लूसिव पावर टू मेक एनी लॉ with respect to any matter which is not there in the concurrent list or state list, and such power shall include the power of making the new law which is imposing a new tax which was not mentioned in the earlier list, ताकि जीएसटी को बर्थ दे सके अपन। हम जीएसटी को बर्थ कैसे दिए वो बताया जा रहा है। जीएसटी की मैटरनिटी पीरियड है ये,
आर्टिकल 246A न्यूली इंट्रोड्यूस्ड, आर्टिकल 248 अमेंडेड, आर्टिकल 249 में अमेंडमेंट किया, और 249 में अमेंडमेंट करके क्या डाला, 249(1) डाला, क्या डाला, नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द प्रोविजन, if the Council of State has declared by resolution supported by not less than 2/3 of the member present and voting, and if it is necessary or expedient in the national interest that Parliament should make law with regards to GST provided under 246A or any matter in the state list, it shall be lawful for the Parliament to make the law for whole or any part of the country with regards to the matter. देखो कैसे धीरे धीरे करके पैदा किया जीएसटी को। हमने 249(1) डाला, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को और बदला गया, आर्टिकल 250 बदला, 250 बदल के क्या किया, 251 किया, 250 सबसेक्शन 1, notwithstanding anything in this chapter, Parliament shall, while a proclamation of emergency is in operation, have power to make law for the whole or any part of India with regards to GST under 246A. सब में वही डाला है, पार्लियामेंट का जो पावर है वो पार्लियामेंट के पास रखा। 268 को अमेंड कर दिया, नाम रख दिया 268(1) कि जो स्टैम्प ड्यूटी है यूनियन लिस्ट में थी, shall be levied by the government of India, but it will be collected by government of India, and in other cases by the states within such duties where they are leviable. और आर्टिकल 268(2) डाला, दैट अगर कोई भी प्रोसीड्स हमारे पास आई इन एनी फाइनेंशियल ईयर शैल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट शैल बी असाइंड टू दैट स्टेट। मतलब SGST का पैसा स्टेट के पास ही रहेगा, वो सेंटर का पैसा नहीं रहेगा। आई रिपीट, SGST का पैसा स्टेट का ही रहेगा, वो सेंटर का नहीं होगा। फिर हमने 269 को अमेंड किया, 269(1) डाल के, टैक्सेस ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स एंड टैक्सेस ऑन कंसाइनमेंट ऑफ गुड्स एक्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय आर्टिकल 269A shall be levied and collected by government, but shall be assigned and shall be deemed to be assigned to states on or after first day of 96, and that's the reason हमने नया आर्टिकल डाला 269A GST, और 269A लंबा आर्टिकल डाला जिसमें पूरा GST लिख डाला। पहला आर्टिकल 269A सबसेक्शन 1 provides that GST will be on supply, the word डाला supply, in the course of interstate trade or commerce and shall be levied and collected by the government, and such tax shall be apportioned, apportion means divided, between the union and the state on the recommendation of the GST council. तो GST का एक काउंसिल बनाया, कंप्लीटली डिफरेंट बॉडी, और उन्होंने जैसा डिसाइड किया वैसा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। और डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है तो IGST पास किया। आर्टिकल 269(8)(2) में लिखा कि जो भी अमाउंट स्टेट का होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में ऐड नहीं होगा। 269(3) में भी बोला कि ये जो पैसा कलेक्ट हो रहा है या जो टैक्स पे करने के लिए यूज हो रहा है वो CFI कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में काउंट नहीं होगा। 269(4) में भी सेम ही बात बोली है, सिर्फ स्टेट के पावर्स का जो पैसा है वो CFI नहीं होगा। एंड 269A सबसेक्शन 5
provides that Parliament can make any law formulating the principles, keep what is supply, where, determine the place of supply and time of supply. ये पावर पार्लियामेंट को जीएसटी काउंसिल देता है. फिर हमको आर्टिकल 270 को अमेंड करना पड़ा. उसमें 270 सबसेक्शन 1 डाला. All taxes and duties referred to in the union list, except the duty referred to in 268, 269 and 269A, surcharge on such taxes in Article 271 and any cess shall be levied and collected by the government and shall be distributed between the union and the states. मतलब इन्होंने टैक्स के अलावा सरचार्ज और सेस कलेक्ट करने का भी प्रावधान कर दिया. 271A नया क्लॉज डाला कि ये जो टैक्स कलेक्ट किया जाएगा वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा. एंड 2, ये जो यूनियन टैक्स कलेक्ट करेगा which is used for the payment of taxes and the amount which is apportioned shall be distributed between the union and the states. And last, Article 271 was amended. It said that Parliament may at any time increase any of the duty except the GST under 246A by a surcharge, and that surcharge shall form part of Consolidated Fund of India. मतलब सरचार्ज का जो पैसा है वो देश के तिजोरी में जाएगा. सरचार्ज का जो पैसा है वो देश के तिजोरी में जाएगा. बट ये सब करने के लिए हमें जीएसटी काउंसिल चाहिए था. वी नीडेड अ जीएसटी काउंसिल. तो हमको जीएसटी काउंसिल को बर्थ देना था. और जीएसटी काउंसिल को बर्थ देने के लिए हमने बनाया नया आर्टिकल 279A. और उसका इफेक्ट आया सितंबर 12, 2016. आर्टिकल 279A, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. 2 आर्टिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉस. 246A, 279A. प्लीज राइट डाउन इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स. 246A, 279A. Can I start 279A? Can I start 279A? Everybody ready? Yes, sir. सी बॉस, ये आर्टिकल सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम यही आर्टिकल पढ़ेंगे और फिर हमें सारे अमेंडमेंट्स देखने हैं. और एक बार ये अमेंडमेंट्स खत्म तो हमारा बैकग्राउंड रेडी हो जाएगा. We will be finishing the article 279A only today. And now tomorrow we will be ending the background part with constitutional amendments in my next lecture. So let's begin article 279A. Everybody ready with the article 279A? Remember, the president shall within 60 days of the commencement of the 101 Amendment Act by order to make a council which is called as a GST council. अब तो ये बन चुकी है पर ऐसा बना था प्रोविजन. अब जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होगा? रिमेंबर, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर विल बी द मेन चेयरमैन. कौन है यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर? कौन बताएगा मुझे? ऐश्वर्या, जोर से. करेक्ट, श्रीमती निर्मला सीतारामन.
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू, कौन है ये? स्टेट, निर्मला सीतारमन के स्टेट लेवल पे कौन है? ये भी अपन ने पढ़ा है CHEET में. मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ द रेवेन्यू. एनीबडी हु इज रिमेंबरिंग इट? केदार याद आ रहा है? नो. ऐश्वर्या? वेरी गुड कैथरीन. ही इज अनुराग, बट समथिंग समथिंग कौन है वो? कोई तो होगा जिसको याद आना चाहिए. निशी? Sir, Anurag Singh Thakur. Anurag Thakur is the right answer. Correct. And third, the minister in charge of finance from all the states, वो भी जीएसटी काउंसिल में आएंगे. फिर ये सब मिलके, चेयरमैन तो फिक्स है, वाइस चेयरमैन चुनेंगे. दे विल ऑब्वियसली सिलेक्ट द वाइस चेयरमैन. अब ये काउंसिल क्या क्या करेगा? जीएसटी काउंसिल शैल मेक recommendations to the union and the states on what all matters. आपको पता है, मैं यहां पे दिखाता हूं आपको. जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स. By the way, here it is. Can you see the meetings of GST Council? इनका अब तक कितना मीटिंग हो चुका है मालूम है? इतना मीटिंग हो चुका है. कितने मीटिंग हो चुके हैं बोलो? They have already met 43 times. और इन्होंने क्या क्या बातें की है वो तो आपको मिल जाएगा, बट रिलेटेड टू क्या क्या बातें करते हैं देखो. 1, कौन सा टैक्स, कितना सेस, कितना सरचार्ज जो यूनियन लगाएगा, स्टेट लगाएगा या लोकल बॉडी लगाएगा, विच में बी सब्ज्यूम्ड इन जीएसटी. जीएसटी में कौन सा टैक्स, कौन सा सेस, कौन सा सरचार्ज अंदर आ जाना चाहिए जीएसटी में, वो लोग रेकमेंड करते हैं. कौन से ऐसे गुड्स एंड सर्विस है जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा, वो लोग एग्जेम्प्ट हो जाएंगे. थर्ड, व्हाट विल बी द मॉडल लॉ, कैसा दिखेगा लॉ, कब लेवी होगा, जीएसटी कैसे अपॉर्शन होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, कितना टर्नओवर होगा तो जीएसटी लगेगा, और कौन से टर्नओवर के नीचे जीएसटी नहीं लगेगा, क्या रेट से लगेगा, कभी कभी क्या स्पेशल रेट से लगेगा, कम या ज्यादा ड्यूरिंग नेचुरल कैलामिटी और डिजास्टर. प्लस हम स्पेशल प्रोविजंस बनाएंगे अरुणाचल, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल, उत्तराखंड. बताओ इनके लिए स्पेशल क्यों? इनके लिए स्पेशल क्यों? कैन एनीबडी टेल मी इनके लिए स्पेशल प्रोविजंस क्यों? एक तो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, एक तो आपको पता है नॉर्थ ईस्ट, अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, ये तो हमारा पूरा नॉर्थ ईस्ट है. हाँ अक्षय, स्पेशल जोन है. करेक्ट, ये स्पेशल स्टेट्स है. इन पे इंडिया ने कभी ध्यान नहीं दिया, अब ध्यान देना पड़ेगा. इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल,
ये हिली एरियाज है, यहाँ पे उतनी एक्टिविटी नहीं है कि उतना रेवेन्यू कलेक्ट हो सके, तो इनको सपोर्ट करना पड़ेगा. एंड एनी अदर मैटर वॉट एवर दे रिलेट टू. बाय द वे आपको पता है जीएसटी में क्या नहीं है? जीएसटी में पेट्रोल डीजल को अभी तक जीएसटी में नहीं रखा गया है. बहुत टाइम से डिबेट हो रही है कि पेट्रोल डीजल को भी जीएसटी के एम्बिट में ले लिया जाए, बट अभी तक वो जीएसटी से बाहर है. पेट्रोल डीजल पे आज भी एक्साइज लगता है, वैट लगता है, जीएसटी नहीं लग रहा है. सो ये लोग ये भी डिसाइड करेंगे कि कब से ऐसा तारीख आएगा जिस दिन से पेट्रोल, नेचुरल गैस, एविएशन, एटीएफ मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, वो लोग को भी जीएसटी के तहत लाया जाए. प्लस ये काम करते वक्त जीएसटी काउंसिल HSN कोड, दैट इज हार्मोनाइज्ड HSN कोड. सैम मुझे इसका कोई फुल फॉर्म बताएगी सैम? HSN का फुल फॉर्म? हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. लवली राघव. हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, हम वही नॉर्म से प्रोडक्ट और सर्विसेज को कोडिंग करेंगे. हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. आई रिपीट माय वर्ड, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर. अच्छा, अब ये लोग मिलेंगे मीटिंग में, तो कोरम मतलब मिनिमम नंबर टू स्टार्ट द मीटिंग, वो भी होना चाहिए. कितना है कोरम? 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर. जैसे ही 50% आ गए, मीटिंग स्टार्ट. ये काउंसिल का खुद का प्रोसीजर होगा. ओके, जो भी डिसीजन काउंसिल लेगा वो 3/4 मेजॉरिटी से लेगा. 3/4 मेजॉरिटी. और 3/4 मेजॉरिटी कैसे आएगी? जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका वोटिंग का जो वेटेज है वो 1/3 है, और बचा हुआ 2/3 जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है. 1/3 वोटिंग सेंट्रल गवर्नमेंट की है और 2/3 वोटिंग स्टेट गवर्नमेंट की वोटिंग है. जीएसटी काउंसिल कोई भी काम करे वो इनवैलिड नहीं होगा, भले उसमें वैकेंसी हो या कोई डिफेक्ट रह जाए, या तो कोई गलती से अपॉइंट हो गया हो, या तो कोई प्रोसीजर में गलती हो जाए, फिर भी जीएसटी काउंसिल जो पास करेगा वो राइट होगा. प्लस जीएसटी काउंसिल एक ऐसा मैकेनिज्म बनाएगा कि स्टेट्स और गवर्नमेंट में डिस्प्यूट ना हो, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में डिस्प्यूट ना हो, या दो या दो से ज्यादा स्टेट्स के बीच में डिस्प्यूट ना हो. गाइस, ये वापस रिपीट है, मैं पढ़ ही नहीं रहा, मैंने कट किया है, देखना कहां से. प्लीज सी, रिपीट में लिखा था इसलिए मैंने कट कर दिया. प्लीज, वी हैव स्टडीड द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस टुडे, वी हैव डन द बैकग्राउंड, I have given you the history of GST. I have explained you the advantages and disadvantages of GST. आज हम पेज 637 पे स्टॉप कर रहे हैं. Guys, we have to start this chapter from page 638 tomorrow. We are not taking this chapter forward today. अभी भी हमारे कुछ constitutional amendments बाकी है, but we will do it in another class. We don't want jeopardy to happen, lot of things to happen on first day of GST. So please revise these provisions. Never ever leave anything to the next day. सब कुछ same day पढ़ना है आपको, ताकि you don't go behind the portion at all.
Make sure that you study this much for tomorrow. And tomorrow I will start from page 638 and we continue with the constitutional amendment provisions for bringing the GST law. So, today we have covered a very huge part of GST, being the basic lecture. Now we have to take this forward in the coming class. So that was chapter number 11, guys, for the day.